almost 3 decades in the field of politics, this leader can undoubtedly be termed as the one and only. He's been regularly listed by RISSC among the 500 most influential Muslims of the world. Yes, I think by now you can assess who it is. I'm talking about Mr. Asaduddin Owaisi, MP and National President of AIMIM. AV, please. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఆయన ప్రస్తావన లేకుండా ఎవరూ ప్రచారం చేయలేరు. ఆయన ఉనికిని గుర్తించకుండా అడుగు కూడా ముందుకు సాగలేరు. హీ ఈస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. తండ్రి సలాహుద్దీన్ ఓవైసీకి వారసుడిగా దారుసలాం పగ్గాలు చేపట్టిన అసదుద్దీన్ మాటే ఒక తూట. మైనారిటీల్లో అతివాది, కానీ ప్రత్యర్థుల విమర్శలకి చిక్కకుండా పదునైన విమర్శలు సంధించే మాటకారి. ఆర్ఎస్ఎస్ ని ఎంతగా వ్యతిరేకిస్తున్నారో ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ అంటే కూడా అంతే మండిపడుతున్నారు అసద్. తెలంగాణలో ఇప్పుడు అసద్ కు బీజేపీ కంటే కూడా కాంగ్రెసే ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా మారింది. కేసీఆర్ కరుడుగట్టిన హిందువే, కానీ ముస్లిం హక్కులని కాపాడుతున్న సెక్యులర్ అంటున్న అసద్ కాంగ్రెస్ లక్ష్యంగా కొన్ని సీట్లు త్యాగం చేశారు. మరికొన్ని చోట్ల అనివార్యంగా పార్టీ బలం లేకపోయినా పోటీ పెట్టారు. దారుసలాముండే గోషామహల్లో పోటీ పెట్టకుండా బీజేపీకి సహకరిస్తున్నారు అన్న విమర్శ ఉంది. అజార్ పై జూబ్లీహిల్స్ లో రంగంలోకి దిగడం విమర్శలకు తావిచ్చింది. అయితే మా పార్టీ, మా ఇష్టం, మా వ్యూహం మాది అంటున్నారు అసద్. మంచి క్రికెటర్ కూడా అయిన అసద్ కు ఎప్పుడు ఏ ఆట ఎలా ఆడాలో తెలుసంటారు నేతలు. అటు కాంగ్రెస్ కు ఇటు బీజేపీకి ప్రచారాస్త్రం అసదుద్దీన్. మరి ఆయన ప్రచారం పాత బస్తీ డెవలప్మెంట్. అసద్ అన్క్వశ్చనబుల్ లీడర్ ఇన్ తెలంగాణ. Yes. May I now call upon the big brother of the minorities, MP, National President of AIMIM, Mr. Asaduddin Owaisi, onto the dais and find out what his political strategy is in this game-changing elections of the Telangana state. And I also call upon to conduct this session, Mr. Gaurav Agarwal, anchor TV9 Bharatvarsh, to join me on stage. Yes, Asad Bhai, welcome to the TV9 Conclave. Shukriya, madam. Thank you. How's the campaigning going on? The campaigning is good. These are last few days of the campaigning, so we'll have to work more harder and ensure that we don't commit mistakes which we have done in the past, and continue till the 30th 5 p.m. That is very important. Yeah. So असद भाई, क्योंकि आप जानते हैं इस सेशन का या इस कॉन्क्लेव का नाम ही है व्हाट तेलंगाना थिंक्स टुडे. जी जी. तो बतौर असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना क्या सोच रहा है इस इलेक्शन में? मेरे को ये लग रहा है कि जहाँ पर हमारे 9 कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर इंशाल्लाह हमारे को उम्मीद है कि हम 9 सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे. हमारी एमएलएस की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा और जो 110 विधानसभा की सीटें हैं, हमको लगता है कि वहाँ पर तेलंगाना की जनता दोबारा केसीआर को तीसरी मर्तबा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी. ये तेलंगाना का मूड है. हाँ, अब मैं तो कोई डेटा क्रंचर नहीं हूँ, मगर जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ. Asad ji, may I know why you have fielded candidates just in 9 places? Because Akbar made an open statement, very strong statement in the assembly saying you would field candidates in 50 places at least. And what's the reason for just limiting to 9 places? Akbar said in that statement that if my party president and the party agrees, then we will go ahead and field X number of seats. So the party decided that we will contest only 9 seats, and there was a discussion to contest in Nizamabad. There was a discussion to contest in Karimnagar, in Mehboob Nagar, in other places also. But we decided that we'll focus more on the 9 seats, and
And the remaining seats, we must ensure that RSS does not get strengthened in Telangana, and so that it doesn't create problems for us in the future, for Telangana state in particular and the minorities in general. But can we know the reason why you're not contesting in Goshamahal? On the other hand, you have fielded No, candidate see- opposite Azharuddin in Jubilee Hills. See, this question is coming up everywhere. Now, if I contest in Goshamahal, then BJP wins hands down. Because people do not know the demography of Goshamahal, where you have only 26 or 27% of minorities, 6-7% of Dalit community. And so if we contest, then it is for sure BJP is going to win. And people don't tell you that before Goshamahal was created, it was created in 2009. It was a Maharajganj constituency. We had never contested Maharajganj. And then when it became Goshamahal, we supported Mukesh Gaud. 2014 also, 2009 I was part of UPA. 2014, though we were not part of UPA, but still Mukesh Gaud, we had a good relationship, we supported, we lost. 2018, we had told some Congress people that don't contest from here, leave it. But they insisted and contested, they got 27,000 votes and the BJP won with 17,000 votes. So that is why we have never contested Goshamahal or Maharajganj. As far as Jubilee Hills is concerned, it was Khairtabad before, headed by a great PGR, a great leader of public masses. So in 1984, MIM had given a candidate in Khairtabad to one Mr. Jani Mia. 89, it was given to Mr. Kazim. Then in 94, we had Mr. Rashid, another person. In 2009, we had given it to Chinna Sri Salam, but because of some technicality, his nomination was rejected. 2014, Naveen Yadav was given, we came second. 2018, we didn't contest. 2023, we are contesting because we have two corporators over there. One is the biggest division called Sheikhpet. He had won it twice, he's a candidate. Eragadda, the Sharif family had won it thrice. And in other two divisions of Rahmat Nagar, Borabanda, out of 4 municipal wards, in last municipal election, we got 28,000 votes. And you know how many votes Congress got? 1,000. And then they have the cheek to ask me, why are you contesting? Problem with the Congress party is that they put a Muslim candidate against me in Nampalli, in Karwan, other places. Congress party will not talk about that. The Congress party will not talk about those assembly constituencies where Reddy versus Reddy is fighting. Where Munur Kapu is fighting Munur Kapu, where Padma Shali is fighting Padma Shali. नहीं लेकिन नहीं सुनिए ये और एक बात याद रखिए, अरे भाई आप तो स्पोर्ट्समैन है ना, कि आप बैटिंग करने जाते खुद बोलते हैं कि मैं मैल्कम मार्शल को नहीं फेस करूंगा, मैं खाली एक स्पिनर को फेस करूंगा। यही सवाल है असदुद्दीन जी, मैं आपके जितने कैंपेनिंग के वीडियोस देखता हूँ, राहुल गांधी पर आप कुछ ज्यादा भड़के हुए हैं इस कैंपेन में। नहीं कुछ लग गई है क्या बात? नहीं, राहुल गांधी को आदत डालनी चाहिए क्रिटिसिज्म सुनने की। राहुल गांधी अपने आप को ये समझते हैं कि वो बड़ी एक फैमिली ट्री से आते हैं, नेहरू परिवार से आते हैं, तो वो जो भी बकवास करेंगे हम सुन लेंगे। तो राहुल गांधी अगर बकवास करेंगे तो हम सच्चाई उनके मुंह पे बोलेंगे। ये भारत वो भारत है जो बदल चुका है। अब इस भारत में कोई खानदान पानदान नहीं चलने वाला है। अगर राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं? सरासर बकवास कर रहे हैं, सरासर बकवास कर रहे हैं। ऐसा लगता है बाज़ वक़्त कि उनका कौन स्क्रिप्ट राइटर है जो उनको बर्बाद करना चाहता है, जो दिल में आया बोले जाते हैं। तो उन्होंने कुछ और भी बोला है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। उन्होंने पनौती और जेब कतरा भी बोला है, उस पर क्या मानना है असदुद्दीन ओवैसी का? अब देखिए वो जिसको बोले हैं वो बताएं, मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना मुझे उनके बारे में कुछ बोलना है। जो भी आदमी बोलता है ना, अपनी ज़हनी काबिलियत की बुनियाद पर बोलता है, अपनी इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी उसमें होती है उतना ही बोलता है। अब उसके पास नहीं है, अगर किसी का फर्स्ट फ्लोर खाली है
तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है उसमें। आप स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन आप स्पोर्ट्स पर्सन है। You're a नहीं, मैं फास्ट बॉलर, सो यू नो। नहीं, जुबली हिल के जो जुबली हिल कैंडिडेट, ही इज कंप्लेनिंग। व्हाई इज ही कंप्लेनिंग? एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट द जुबली हिल कैंडिडेट is a failed politician. He won the prestigious seat of Moradabad. My friend will vouch for it. He was not repeated by his party. He was told to go and contest Savai Madhapur Tonk, got 4 lakh votes, never went to thank those people. He was an HC, Hyderabad Cricket Association president. You know, he got Hyderabad to the plate division, the lowest division. So forget about he understanding people's problems and having a commitment to serve the people. Just because he happened to play for India. As a cricketer, I respect him, amazing cricketer, amazing batsman. But as a man who wants to serve the people, he has no idea about it. He has no idea. And look at this Congress party. You had Vishnuvardhan Reddy over there. He lost 2 elections, never left Congress party, stood with them. And then you bring in a person who was never to be seen. Is this how you treat your people? Anyway, that is their... क्या यही रीजन है कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान से लेकर उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो सब आपके पीछे पड़े हुए हैं? बात आपकी शेरवानी तक आ जाती है। नहीं, मेरा हाल तो ऐसा है ना कि फंस गई रजिया गुंडों में, तो मैं तो सबकी लैला हूं। कोई अब कल से मोदी जी आ जाएंगे, वो भी शुरू कर देंगे, ओवैसी की हाथ में स्टेयरिंग है। अमित शाह तो बोल रहे हैं हम ओवैसी को वो कर देंगे। कल हेमंत बिस्व शर्मा आए, आके मुझे गाली देकर गए। तो देखिए कितना बड़ा खौफ है इनका हमारे ताल्लुक से, इनके दिलों में। आसाम से आता है तो ओवैसी, दिल्ली से आता है तो ओवैसी, कहां से भी आ जाओ, MIM ओवैसी को बोलना जरूरी है। नहीं तो ओवैसी का किरदार है क्या? देख, जैसा आपने कहा, राहुल गांधी या कांग्रेस कहती है कि आप बीजेपी के बी टीम हैं, बीजेपी आपको कहती है आप 3G हैं, आप उनको साथ दे रहे हैं, BRS को साथ दे रहे हैं। ओवैसी को कैसे देखें हम? ओवैसी का किरदार है क्या? नहीं देखिए, मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है राहुल गांधी से और नरेंद्र मोदी, अमित शाह से। मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो चाहे बोलते रहे, मुझे क्या करने का है। मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरा किरदार ये है, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं 9 सीट पर लड़ रहा हूं। 9 सीट पर मुझे MLA बनाइए, हम कामयाबी हासिल करेंगे। 110 सीट पे हम नहीं लड़ रहे हैं। 110 सीट पे हमने कहा कि मामू को जिता दो आप। और क्या बोल रहे हैं? और कुछ भी, ये मेरा किरदार है। अब इसमें जिसके पास कुछ बोलने को है ही नहीं, वो बोले जा रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ, कभी कभी मैं अपनी स्पीच में बोला हूँ कि शायद मोदी जी को और राहुल गांधी को एक जगह बिठाना चाहिए और बिठाकर हैदराबाद की मशहूर नीलोफर चाय है। आप कभी पिए नीलोफर चाय? नहीं पिए, बहुत मजे की है। नीलोफर चाय है, सुभान बेकरी का उस्मानिया बिस्किट है, कराची बेकरी का फ्रूट बिस्किट है। ये बिठा के इनको खिलाना और एक बन मस्का भी रख देना नीलोफर का कि भाई आप लोग डिसाइड कर लो क्या बोलना चाह रहे मेरे को। कुछ भी नहीं, ये आते वो एक बात बोलते, वो आते वो एक बात बोल के चले आते। हेमंत बिस्वा शर्मा आके बोलते मैं पूरे मदरसों को बंद कर दूंगा, वो बोलते कि वो कर दूंगा। ऐसा क्या किशन रेड्डी बोलते कि मैं बुलडोजर चला दूंगा। तो समझ में नहीं आ रहा भाई, इलेक्शन हो रहा है या कोई सिविल वार हो रही है यहाँ पर? डेमोक्रेसी का एक डांस है, ये फेस्टिवल है। ऐसा दिख रहा है कि कुछ वैसा कर देंगे। जंग हो रही है क्या भाई? नहीं, इस डेमोक्रेसी के डांस में आपने चैलेंज कर दिया है राहुल गांधी को अमेठी के। आप इस बार जा रहे हैं अमेठी लड़ने? नहीं, अब ये क्योंकि राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि हम पैसे लिए हैं बीजेपी से, तो हम राहुल गांधी को पूछना चाह रहे हैं, भैया आपने अमेठी हारा तो स्मृति ईरानी से कितने लिए? आप हारे ना, वो हारे। आप प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, आप 55 पे आ गए, 55 जीते। कितने लिए मोदी जी से? भाई अगर इलेक्शन लड़के हारने का पैमाना पैसे है तो पहले उनसे शुरू होना चाहिए। सच कह रहे हैं ना भाई? आप कह रहे हैं तो आप हार गए। आप मोदी जी को 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना दिए, आप गुजरात में जाके उनको बना दिए। कितने पैसे लिए आप बताओ? अगर वो बता देंगे तो मैं भी बताने तैयार हूं। कि मजाक है क्या? इलेक्शन लड़ना डेमोक्रेसी का एक मौका है। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट करते हैं ये लोग कि नहीं, हम
उस परिवार के हैं और हमारे सामने कोई नहीं ठहरना। अरे भाड़ में जाए यार, 2023 है, 47 60s नहीं है ये कि तुम्हारे, ये तो फ्यूडलिज्म है ये कि नहीं कुछ मत बोलो। हम राहुल गांधी को चैलेंज किए तो दिल्ली से कांग्रेस के 10-15 लीडर्स फोन SMS करे, ये मत करिए आप। अरे बोला क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, आपको मैसेज आ रहे थे दिल्ली से? मैसेज ठोक भाई है, अभी कभी रहते ना दोस्ती वोस्ती रहती, हेलो हाय होती, अरे ये क्यों कर रहे तुम? अरे मला भाई साहब वो हमको गाली देंगे और आप समझ रहे कि हम उनसे आशीर्वाद लेंगे? हम भी जवाब दे सकते, हम भी बोल सकते, हमारे मुंह में भी जबान है, अल्लाह हमको भी बोलने की सलाहियत दिया। आप एक बोलो, मैं 100 बोल सकता हूं आपको। अब आप बताइए, पैसे लेने की बात करते हैं, ये जगन मोहन रेड्डी को कभी पूछना जाके, आप जेल में मैं जाके मिला था प्रेसिडेंट इलेक्शन जब हुआ था प्रणब मुखर्जी का, ये मैडम सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और लेट अहमद भाई बोले थे मेरे को, जेल में जगन को 2 घंटे समझाना पड़ा, राजी नहीं थे जगन। 2 घंटे समझाने के बाद बोले ठीक है सद भाई देखेंगे। मैं बोला प्रणब मुखर्जी हैदराबाद आए तो विजय अम्मा से जाके मिले, जब पैसे दिए क्या? 2008 न्यूक्लियर डील, ये लेफ्ट पार्टीज आज इनके साथ है, कल अडवाणी साहब के साथ थे, पैसे दिए थे क्या? आप बताइए, किरण कुमार रेड्डी की गवर्नमेंट यहां गिर रही थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कांग्रेस की लास्ट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में, नो कॉन्फिडेंस में तेलंगाना के कांग्रेस लीडर्स KCR के साथ, आंध्रा के MLA जगन के साथ, हम सपोर्ट करें, कितने पैसे दिए हमारे को बोलो आप? तो देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि जिस घर में जिसकी परवरिश होती है और जो प्रायोरिटी रहती है उस घर में, मेरे घर में पैसा प्रायोरिटी नहीं था ना आज भी है। मेरे घर में हमेशा यह था कि जो भी पूछना है अल्लाह से पूछो और इखलाक से पेश आओ। मगर यहां तो आप आकर हमको बोल रहे हैं, अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है भाई बहन की जोड़ी क्या है? भाई बोलते मैं पैसे लिया, बहन बोलते कि आप बहुत कम सीट लड़ रहे KCR को जिताने के लिए। अरे भाई बहन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कंफ्यूजन है पूरा इनके पास। People say, as far as Old City is concerned, people call you as the Bal Thackeray of Old City. Madam, How do you look at this comparison? I take strong objection to that description, because you show me one speech of mine or any action of mine wherein I have said or done anything against the Hindu community or the Dalit community or OBC community. We have never done. Maybe the way you that is control over the Old City? No. I have never told my people to go and in communal riots create a situation which happened in Mumbai in 92 and 93. No, never. That is a wrong description to make. I am just a politician trying to do my best. That does not mean that I will indulge in dog whistle politics or ensuring communal riots happen. And the proof is that in last 9.5 years, there has been no communal riot, Alhamdulillah, in Telangana, apart from Bhaisa 2 days. Last month, we had Ganesh Chaturthi immersion and Milad rally same day. We were the ones who postponed it for the next 3 days. We wanted the Ganesh procession to go off peacefully. So that is a wrong description. नहीं, आपको बाल ठाकरे कहलाने पे नहीं क्यों आप, अरे भाई आप लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। नहीं आप मेरे को क्यों बोलेंगे भाई? नहीं मैं नहीं बोल रहा। नहीं मैं ये बोल रहा हूं कि मैं मुस्लिम हिजरे सम्राट हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। बाल ठाकरे बोलते थे, अब मोदी जी बोल रहे, मैं क्यों बोलूंगा? नहीं, आपको बाल ठाकरे कहलाने पर आपत्ति है, ठीक है, आपकी आपत्ति का सम्मान। नहीं, भड़काऊ भाईजान कहलाने पर आपको क्या लगता है? नहीं कहां भड़काऊ भाईजान है? आप लोग अपनी TRP बढ़ाने के लिए भड़काऊ भाईजान अपनी TRP के लिए करते हैं, मैं क्या करता हूं? क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, Right, लेकिन you were talking about the development in Old City. You were telling about your only goal is to develop the Old City, right? Develop. What according to you over the past few years has the Old City witnessed in terms of development, according to you? The biggest SNDP work of widening of nalas has been done in Hyderabad Parliament constituency. You can ask the GHMC, you can file an RTI application. Highest SRDP funds have been utilized in Hyderabad Parliament constituency. In Hyderabad Parliament constituency, 82 Basti Dawakhanas are working. 82. At the same time, every assembly constituency, I am not exaggerating, I am telling you, in the last 5 years, I am thankful to KTR and the CM, especially KTR. Every assembly constituency, we have done more than 250 crores development works. It is beyond that.
We have ensured that every government scheme is properly implemented. Shadi Mubarak, Kalyana Lakshmi, Asra pension, overseas scholarship, pre-matric scholarship. Every assembly constituency which we are representing has at least minimum of 2 to 4 Temeris residential schools. This is the work, and apart from that, during COVID time, we were the only party in the city of Hyderabad which distributed 1,200 oxygen cylinders free of cost and 70 oxygen concentrators. We were providing people beds in hospitals. So that work is also नहीं, there. तो आप ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी कि आप डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ। लेकिन इसी कैंपेनिंग में बात राम मंदिर और मुस्लिम आरक्षण तक गई है। कौन किया ये? बीजेपी कह रही है कि हम फ्री में राम मंदिर के दर्शन कराएंगे और आ गए तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए, मैं तो नहीं किया ना, क्यों? ये वो लोग करते हैं, दिखाने को कुछ है ही नहीं उनके पास, दिखाने को कुछ है ही नहीं। अरे भाई, अगर आप लेकर जाना चाह रहे हैं लोगों को, तो आप नौकरी क्यों नहीं देते? मोदी जी, नौकरी देना चाहिए ना लोगों को। आपने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, अब कह रहे हैं कि जनवरी या फरवरी 24 तक 15 लाख नौकरी में दे दूंगा। भैया, आप 9 साल से सरकार में है, आरक्षण क्यों खत्म करेंगे आप? आरक्षण मुसलमान को मुसलमान होने के नाते नहीं मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है आर्टिकल 15 के तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर। लेकिन उन्होंने कर्नाटक में खत्म कर दिया था। सुन तो लीजिए, मेरे मुकम्मल करने दीजिए। कर्नाटक का जो आरक्षण था, ये नहीं था, वो बिल्कुल वही था, मुसलमान के ऊपर था। यहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका नाम PS कृष्णन साहब ने लिखा, जो इंडिया के मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो मंडल कमेटी रिपोर्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल था, उनको मिल रहा है, हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन। तो आप कह रहे हैं बीजेपी गुमराह कर रही है? झूठ, गुमराह तो गलत है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है बीजेपी। और उन कम्युनिटीज को जो मिल रहा है, उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, बेटियां इंजीनियर बन रही हैं, MRO, RDO, DYSP, टीचर्स, नर्सेस। क्या बुरी बात है भाई? देश मजबूत होगा ना, देश तो मजबूत होगा। तो ये राम मंदिर का नाम क्यों लाना पड़ा फ्री में? अरे दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं ना बीजेपी के पास, तो शुरू कर दिए अपना पुराना बाजा। Asad ji, I will pose the same question I asked Mr. Kishan Reddy. What are your terms with the BJP? What are my? Your terms with the BJP. They are my political opponents. We are two sides of the seas. How can two sides of the sea come together? Even if tsunami happens, it will happen in the sea. Those two sides cannot come together. We are ideologically we are on a different level. How can we change our ideology? It is not. It is wrong to even compare MIM with BJP. It is completely wrong. नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप समंदर के 2 किनारे हैं, एक बीजेपी, एक ओवैसी। हाँ, कांग्रेस के साथ भी यही है आपका? या एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इलेक्शन के बाद कहीं कोई जरूरत पड़ती है कांग्रेस पार्टी को, क्या ओवैसी साथ देंगे? कितने पैसे देंगे मेरे को? राहुल गांधी कितने चाहिए आपको? बोल दीजिए, आज सुन लेंगे। अरे भाई साहब, वो दिन आने वाला नहीं है। KCR अपनी ताकत पे तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनेगा इंशाल्लाह। अब ये बोल रहे हैं, बके जा रहे हैं, कोई नहीं होने वाला है वैसा। मुझे यकीन है कि तेलंगाना की अवाम एक अच्छा फैसला लेगी। देखिए, 9.5 साल में अमन रहा, पीस रहा, प्रोग्रेस रहा, हैदराबाद के अतराफ के इलाके ग्रो हो रहे हैं, और कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से लाखों एकड़ ज़मीन सैराब हो रही है। तो ये कंटिन्यूएशन होगा यहाँ पर। और हमको ये बात समझना है कि 2 नेशनल पार्टीज जहाँ पर रहेंगे वो स्टेट बर्बाद हो जाता है। 2 नेशनल पार्टीज रहेंगे तो स्टेट बर्बाद हो जाता। जहाँ पे रीजनल पे रहता वो स्टेट प्रोग्रेस करता। और तीसरा प्लेयर रहने की वजह से माइनॉरिटीज को, स्पेशली माइनॉरिटीज और दलित्स को बहुत बड़ा फायदा है। 2 नेशनल पार्टीज रहे तो बीजेपी सत्ता में रहती, या बीजेपी अपने एजेंडे में एग्रेसिव हो जाती। 5 स्टेट्स में तो 3 में तो वही 2 आमने सामने हैं। तो वही तो हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में 40 साल से कांग्रेस है। हाँ, क्या बजट है माइनॉरिटीज का? 290 करोड़। सेम परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स वहां पर भी, यहां पर भी है। यहां पर कितना बजट है? 2200 करोड़। और एक मिसाल दे रहा हूं आपको, जयपुर ट्रेन में एक आतंकवादी ने 3 लोगों को गोली मारी थी।
उसमें एक सैफुद्दीन नाम का शख्स हैदराबाद का था, बाजार घाट का। हम खड़े होकर गवर्नमेंट असेंबली में अकबर ने पूछा, उसको एक्सग्रेशिया दो, 3 बेटियों के नाम पे एक्सग्रेशिया डिपॉजिट हुआ। विडो को गवर्नमेंट का नौकरी का लेटर दो, दे दिए। 2 BHK दो, दे दिए। एक और मरने वाले का ताल्लुक राजस्थान से था। यह राहुल गांधी को बोलना चाहिए, उसके पास एक पैसा नहीं मिला, कोई सरकार का आदमी जाके उससे मुलाकात नहीं किया। जयपुर एक्सप्रेस में हुआ ये इनका पॉलिसी है। यहां पर देखो आप माइनॉरिटीज का कितना फायदा हो रहा है। वहां 290 करोड़, यहां पे 2200 करोड़, वहां पे 2 रेजिडेंशियल स्कूल, यहां पे 201 रेजिडेंशियल स्कूल। तो तीसरा प्लेयर है यहां पर, इसीलिए बीजेपी भी कुछ नहीं कर सक रही, कांग्रेस चीखे मार रही है। केसीआर है भाई, केसीआर में भी कमजोरियां हैं, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूं उस बात को, मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो उर्दू में वर्ड है मजमूई तौर पर ठीक है। ठीक है। Right. What iconic developments can you actually quote that has happened in the old city, or something that you have initiated on your own? No. There are many works which are in the pipeline. The extension of this metro line from Jubilee bus stand to Falaknuma, RDP work has been done. Many road widening works have been done. In one Karwan assembly constituency, only one Karwan assembly constituency and part of Nampally assembly constituency, 290 crores worth of sewerage line is being laid. Nearly 40% of that work, 50% work is completed in Ward 9 of the Karwan assembly constituency. Then, as I told you about the widening of nalas, in places like Yakutpura and Chandrayan Gutta, it has been done. You know, and then opening of temporary schools. Every 7 segments, we have at least 14 to 16 temporary schools in these places. What pulls down the Muslim community is the lack of education facilities that we have created. That is there. Basti Dawakhanas, 82 Basti Dawakhanas are there in Hyderabad Parliament constituency. 80 crores worth of new cancer hospital has been constructed in Nampally. 80 crore new. Then this Nampally area hospital, more than 30-40 crores have been spent to renovate and to create more beds. Same has been done in the Golconda area hospital. So people don't understand what MIM is doing. You get carried away by what I give a speech. मजलिस पे Exactly, एक but at the आरोप यही same लगता time, है। एक मिनट, मजलिस से पे एक आरोप यही लगता है सर कि असदुद्दीन ओवैसी ने या मजलिस ने कोई दूसरा मुस्लिम नेता वहां से खड़ा नहीं होने दिया। अरे आप हम तो बोल रहे ना, आप खड़े हो जाओ, कौन वो किसको रोक रहे हम? अरे भाई इलेक्शन हो रहे ना, कोई सद्दाम हुसैन तो नहीं है यहाँ पर, किम जोंग टू तो नहीं है, इलेक्शन लड़ो, आप कौन रोक रहा है आपको? लड़ो ना भाई। ये अजहरुद्दीन को भिजाना था गोशा महल, मेरे खिलाफ ही गोशा महल भिजाना था ना, क्यों नहीं गए गोशा महल? आप गोशा महल से दे दिए बेचारी एक कमजोर कैंडिडेट को, आप देना था। मैं तो राहुल गांधी खड़े हो बोल रहा हूं मेरे खिलाफ, आइए खड़े रहिए, क्यों जाती है अमेठी को? आप वायनाड मत जाइए, आज आ जाइए हैदराबाद में, मुकाबला हो जाएगा। भाई का एक वीडियो फिर से वायरल हुआ है अकबरुद्दीन का। जी। और जैसा मैंने आपको कहा, तो आपने कहा कि मीडिया ने कहा है भड़काओ भाईजान टीआरपी के लिए, लेकिन उसमें भी वो कुछ ऐसा बोलते दिख रहे हैं जिसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। एक बड़े भाई होने के नाते, आप पार्टी लीडर तो हैं ही, खैर एक बड़े भाई होने के नाते कभी आपने उनसे कहा कि इस पे थोड़ा कंट्रोल किया करो, ऐसे मत बोला करो? ईमानदारी से देखा जाए तो अकबर बड़े हैं, मैं छोटा हूं। अच्छा, तो उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी का आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, आपके व्यूअर्स को। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 17,000 पुअर बच्चियों को फ्री में एजुकेशन दिलाते अपने स्कूल में। 17,000। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है, वो एक ही रूल है कि एक घर से एक बच्चा या बच्ची रहेंगी। ये अकबरुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब जो इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग जब स्पीच देते हैं ना, तो टेलीप्रॉम्प्टर सामने नहीं रहता हमारे, और ना हम लोग हिंदी के वर्ड इंग्लिश में लेके आते, लिख के लाते, वो देख के बोलने को। हम लोग खड़े होके दिमाग में एक स्केच रहता, उसको बोलते। तो हमारे वालिद साहब हमको ये सिखाए थे कि देखो स्पीच जब दे रहे, फर्स्ट 2 मिनट्स इंपॉर्टेंट है, एंडिंग के लास्ट 2 मिनट्स इंपॉर्टेंट है। ये हमको सिखाए। बल्कि मैं तो शेयर कर रहा हूं, अगर कोई अच्छा ऑडिटर बनना चाह रहा है तो पहले 2 मिनट, जैसा मैडम शुरू कर दे कि मैं बोलना शुरू कर दिया, तो वहां पे लोग क्या बोल रहा है इन्हें, अब एंड करते वक्त लास्ट 2 मिनट्स, अब 5 मिनट बाकी है, ऑफिसर डाइस के सीढ़ियों पे खड़े होके बंद करो
बंद करो। कैसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा बोलिए आप परमिशन दिए 10 PM तक, आप सीढ़ियों पे चढ़ के अगर कोई आके एंकर को बोल दिया, समझिए यहाँ पर आपके, ए बंद करो, तो आप बोलेंगे अरे वो नो दैट्स ओके, वो नहीं ठीक नहीं है। दैट इज नॉट ओके, लेकिन दैट इज नो दैट इज नॉट ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का तरीका और भी कुछ हो सकता है। देखिए सुनिए, आप 35 मिनट्स पे स्पीच दे रहे हैं, 35 मिनट से आपको कंक्लूड करना है, कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आप उस वक्त बंद करो, अरे भाई 5 मिनट बाकी है। उस ऑफिसर, मैं बोल रहा हूं, उस ऑफिसर की हरकत का वीडियो रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास। हम तो चाह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी इंक्वायरी कराए। अगर ये उसका रवैया रहेगा तो पोलिंग के दिन क्या करेगा वो फिर बताइए। आप लिख के दे रहे 10 PM, 10:01 हो रहा, केस बुक करो आप हम 5 मिनट बाकी है। नहीं तो क्या अकबरुद्दीन पर केस नहीं होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इशारा करूं तो आपको दौड़ा लेंगे। देखिए वो अकबरुद्दीन, देखिए ऐसा है ना कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि मैं अकबरुद्दीन भारत के सबसे गंदे बुरे आदमी हैं। हम लोग भड़काऊ भाईजान है, हम लोग तालिबान है, हम लोग क्या क्या ISI है। अब बल्कि नामपल्ली का कांग्रेस का कैंडिडेट तो बोल दिया कि नामपल्ली में 2 लाख में 1.5 लाख मुसलमान फेनेटिक है, तालिबानी मानसिकता, वीडियो उनका, वो बोल चुका है तालिबानी मानसिकता है, फेनेटिक है। ठीक है भाई, हम सब गुनाहगार हैं, आप दूध के धुले हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र के बाद आप ही उनके जानशीन हैं, आप ही महात्मा गांधी के रिप्लेसमेंट, आप ही, हम गुनाहगार हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना केस आवाम की जनता में लेके जा रहे हैं, वो फैसला करेंगे। मगर हर चीज में हमको बुरा बना के पेश कर देना, और दूसरे सब माशाल्लाह से ऐसे दूध के धुले हुए हैं, फरिश्ते हैं, कुछ नहीं हो सकता उनसे। 10 बजे तक परमिशन है, हम 10 के ऊपर आप केस बुक करिए। आप मेरी सीढ़ी पर कैसा खड़े हो जाते भाई, कैसा? आप, ये तो गलत है ना। और आप ऑफिसर हैं। फ्री एंड फेयर इज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ द सक्सेस ऑफ एन इलेक्शन। ऑफिसर अगर ऐसा करेगा तो कैसा होगा बताइए। अच्छा, और एक बात बोलिए, अगर मैं यहां से मेरे एरिया के किसी पुलिस ऑफिसर की तारीफ कर दूं, व्हाट एन ऑफिसर ही इज, फैंटास्टिक, आप देखना 24 घंटे में हटा देंगे उसको। अब देखो, अगर मैं नाम लेके बोल दिया 2-3 का, और एक क्या ऑफिसर है बॉस, क्या IPS ऑफिसर है, क्या काम कर रहा, वो बेचारे की खत्म होना, आउट होना, वो मैं कर दूं क्या, बोलो अभी कर दे सकता हूं, मैं भी कर देता हूं। तो ये जो हमारे को, ये हम भी ये खेल खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब यहां तक आए ना, आपके स्टूडियो तक, हम लोग कोई पब्लिक गार्डन के उस पे हरी घास पे चल के नहीं आए। हम भी बहुत मुश्किलात उठाए, बहुत तकलीफ उठाए, कई चीजों पे हम लोग फेस करके आए यहां पर। ऐसा नहीं है कि हम उनके गांधी परिवार के सब बस आ गए, मैं आ गया, एंट्री हो गई मेरी, ऐसा नहीं, हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा, आप अपनी कैंपेनिंग में जितना हमलावर गांधी परिवार पर हैं, जितना हमलावर राहुल गांधी पर हैं, उतना हमलावर बीजेपी पर नहीं दिखते। अरे भाई, अब अगर आप कोई तोलने की मशीन है तो आप कहने मैं क्या करूं, आप तोल के देख रहे, इतना इनको बोले, आप इसी इवेंट में देखिए, क्या बात है ये। सबसे ज्यादा आपने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। अरे भाई, मैं मोदी जी को भी बोल रहा हूं ना, मोदी जी को भी बोल रहा हूं। मैं तो कई मेरे स्पीचेस का हिस्सा आप लोगों को जो उठाना है उठाते आप। हम तो कांग्रेस को भी बोलते, बीजेपी को बोलते। हम तो ये बोल रहे हैं कि नामपल्ली असेंबली सेगमेंट में, निजामाबाद में, यहां पर कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। करीमनगर टाउन में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। हम बता रहे हैं आपको, ये हो रहा है जमीन के ऊपर, आप पूछ लीजिए। कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। निजामाबाद में हमारा 16 कॉर्पोरेटर है सर, डिप्टी मेयर है, 44% मुस्लिम्स है। मैं कैंडिडेट नहीं दिया तो कामारेड्डी से जो कांग्रेस के लीडर थे वो चीखा मार रहे थे, केसीआर मेरे को हराने आया। अब जैसा मालूम हुआ मंजलिस नहीं आ रही, वहां कूद गए। अब आप कूदे तो बीजेपी के पास कोलगेट की स्माइल शुरू हो गई। कौन कर रहा है सब चीजें? देश देख रहा है, तेलंगाना की आवाम देख रही है। Asaji, you were talking about the education facilities that has advanced in the old city, right? What about women empowerment? Because you have been quite vocal about women empowerment, wherein you have said the Hajj subsidy also needs to be diverted for women education and stuff, which didn't actually go well with many of the Madam, Hajj minorities. subsidy, a big fraud has been done by the Modi government. 625 crores was the Hajj subsidy, which was not given to Muslims. It was given to Air India. I had demanded, I was the first person to ask for this subsidy to be removed
and use this 625 crores for Muslim girls' education. Instead of that, the Modi government has decreased the pre-matric, post-matric merit cum means scholarship. This is a fraud, and you are not at all doing anything. You should have used that money for pre-matric, post-matric, merit cum means, or in fact, you would have said this is all the money for women's education. They have decreased the existing amount. You please check this year budget. They have decreased it. ओके अभी आपने कहा कि हम लोग आपकी तकरीरों को लेकर बड़े सेलेक्टिव हैं और जो होता है वही उठाते हैं। मैंने आपकी तकरीरें देखी हैं, आप अपनी तकरीरों में बाबरी मस्जिद का भी बड़ा जिक्र कर रहे हैं और उसको लेकर भी कांग्रेस को घेर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, राम मंदिर बनकर तैयार है, मस्जिद का कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मेरी मस्जिद तो छीन ली है ना मुझसे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री आप सुनिए। जब पहली मर्तबा 48-49 में मूर्तियां रखी गई थी रात के अंधेरे में चोरों की तरह, जब मुख्यमंत्री कौन थे? जीबी पंत। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। आपने कुछ नहीं किया। फिर जीबी पंत है, नेहरू प्राइम मिनिस्टर है, आपने कहा कि मुसलमान नमाजी नहीं पढ़ेंगे, मैं खो दिया। 86 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री है, आपका और मेरा मुकदमा चल रहा है, तो दोनों साइड को जज साहब सुनना चाहिए ना। बगैर मुझे सुने जज साहब ने 86 में 25 पेजेस का ऑर्डर दिया। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। 5 मिनट की हियरिंग में 25 पेजेस का ऑर्डर दे दिया। राजीव गांधी ने ताले खुलवा दिए। दैट ऑनरेबल जज अपनी किताब में लिखे कि मैं ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि जब मैं कोर्ट में बैठा हुआ था तो मेरी कोर्ट की दीवार पर एक मैंने 2 दिन काले बंदर को बैठते हुए देखा, तो मुझे मालूम हो गया कि ऊपर से इशारा हुआ जजमेंट दे दो। अपनी किताब में लिख रहे वो, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो बूटा सिंह ने शिलान्यास कर दिया और वही बात कमलनाथ ने कहा, आपने कैरी किया उसको, आपके चैनल में देखा। अब बताइए सेकुलरिज्म क्या है? मुझे कमलनाथ बोलेंगे कि राजीव गांधी ने ताले खोले तो राम मंदिर बन रही है। अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं टूटी तो कोर्ट का जजमेंट क्या था? बोलिए मेरे को आप, कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या जजमेंट आता कोर्ट का? हम तो हर चीज का नुकसान उठा ली हम तो। We have a few more issues Yeah, to be yeah. discussed, but before that, we have a distinguished panel of guests waiting to talk to you and pose questions to you. May we take those questions? यस यस असद जी, कई सारा सीनियर एडिटर्स यहाँ मौजूद है। हाँ, नहीं मैं आप पहचानते होंगे, पहचानते। जब मैं एमएलए था तो ये सब सीनियर लोग थे, हम मिलते सीनियर थे। एडिटर्स है, कई सारा स्टूडेंट्स बिल्कुल। यहाँ बैठा हुआ है। बहुत बड़े जर्नलिस्ट आई एम हैं। सो हैप्पी दैट यू आर गिविंग सो स्वीट एंड शॉर्ट आंसर सो दैट आई कैन टेक मोर एंड मोर या क्वेश्चंस। प्लीज। असद भाई, मैं गौरी शंकर बात कर रहा हूँ। अरे गौरी साहब, नाम बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आप। असद भाई, ये इससे पहले किशन रेड्डी साहब sit down। जी। किशन रेड्डी साहब आए थे, उन्होंने बोले थे कि मुस्लिम माइनॉरिटीज की जो भी 4% रिजर्वेशन है वो हम निकाल देना चाह रहे थे। और एक सेकंड क्वेश्चन, ये बीच में काफ़ी सोशल मीडिया में सर्कुलेट होते जा रहा है कि मुस्लिम्स इन तेलंगाना, अदर पार्ट्स ऑफ तेलंगाना विल बी सपोर्टिंग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट देते, बल्कि ज़्यादा सर्कुलेशन है। इसमें कितने सच्चाई है? वेदर मुस्लिम्स आर रियली शिफ्टिंग टू कांग्रेस पार्टी और व्हाट? नहीं, ये तो एक कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कोई कुछ नहीं हो रहा है। यकीनन उनका वोट होगा, वो तो वोट उनको मिलेगा, मगर ये बोलना कि मुसलमानों में एक चेंज आ रहा है, बिल्कुल गलत बात है। तेलंगाना का मुसलमान हो, तेलंगाना का हिंदू हो, तेलंगाना का ओबीसी हो, तेलंगाना का दलित हो, आदिवासी हो, वो एक विजिबल डेवलपमेंट को देखा है यहाँ पर और उस डेवलपमेंट को अप्रिशिएट भी कर रहे। तेलंगाना में हाईएस्ट इज द ओनली स्टेट विच हैज द हाईएस्ट सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। तेलंगाना में मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक आसरा पेंशन मिल रहा है, टिमरिस के स्कूल मिल रहे हैं, पॉपुलेशन से ज्यादा ओवरसीज स्कॉलरशिप में उनका शेयर है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में है, मौजन इमाम 17,000 को ऑनरेरियम मिल रहा है। तो ये सब स्कीम्स ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंटेड हो चुके हैं और 9 साल में करीब 11,500 करोड़ 11,500 करोड़ हैव बीन स्पेंड ऑन माइनॉरिटीज। एवरी ईयर 630 करोड़ आप स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें रईतु बीमा ऐड नहीं करा मैं, उसमें ही मुस्लिम्स हैं। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस बोल रही है भाई, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो आरएसएस से आए हुए हैं, तो पब्लिक को मालूम कि इनका प्रेसिडेंट आरएसएस से आया हुआ है। ये आरएसएस में जो जाता कभी निकलता नहीं, वो आरएसएस से एबीवीपी में गए किशन रेड्डी के साथ।
किशन रेड्डी के साथ बीजेपी में गए और आपको याद होगा सर 1999 सज्जाद का इलेक्शन, ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट किशन रेड्डी के लिए काम किया, मैं देखा। आपने उनका नामकरण भी कर दिया है। हाँ, उनका नाम हमने रखा है मोहब्बत से आरएसएस अन्ना, तो आरएसएस अन्ना उनका नाम है। आरएसएस से आए आप कि क्या ये बात तेलंगाना के जनता को, तेलंगाना के मुसलमान को नहीं मालूम कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट आरएसएस से आया हुआ है? आज कांग्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं मोहन भगवत साहब। तो ये है, ऐसा कुछ नहीं है। रिजर्वेशन का देखिए, मुस्लिम्स को रिलीजन पे नहीं मिल रहा है। आर्टिकल 15 सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर पीएस कृष्णन साहब की एक रिपोर्ट है, इंपेरिकल एविडेंस है उसका, और मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको मिल रहा, जो नहीं है उनको नहीं मिल रहा है, हर मुसलमान को नहीं मिल रहा उसमें। तो ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। कर्नाटका का अलग है, तेलंगाना आंध्रा में ये डिफरेंस है। I have an add-on. Yeah. So what happened in Karnataka is not bound to happen in Telangana, according to you. No, see, Telangana, very good question. 6 months have passed since the Congress has come back in power. Why have you not given reservation to Muslims? See, BJP has removed it. You could have issued a government order. You could have issued order. They have not done it in 6 months. This is the real face of Congress party. 6 months have passed. You could have easily issued a GO order, or you could have brought a bill in the parliament, in the assembly, and passed an act. You have not done anything. See, ये कर रहे। All right, next question. असद जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, you are a very good articulator and orator on any topic, of course. But I have 3 short questions. One is that, as it is clear, and our friend was asking, your focus is more on exposing Congress rather than crusading BJP, Modi. Particularly in this context from minority angle, people expect you to talk more and more about it because so many things are happening in this country. Second thing is, you are contesting lesser seats in Hyderabad, where you have developed MIM as a credible political force in the country. But you are contesting more seats in West Bengal, Maharashtra, Bihar, people talking of your ideas of expanding MIM to the whole country. But why it is not happening in the birthplace of MIM? Third point is, may I continue? Third point is, you are supporting whole hog, BRS, of course. But at a time when BRS is accused of taking indirect help from BJP. And last and continuous thing that is very much in the minds of people is that MIM keeps Old City in a backward state because they got vested interest in keeping it backward. And it is out of bounds for other secular forces who are interested in supporting Muslims. Sir, if I'm keeping it backward, you come and defeat me now. Who's stopping you? If I'm keeping it backward, your task becomes easier. I am challenging all my political opponents to file an RTI in Greater Hyderabad Municipal Corporation, in waterworks, in electricity department, in health department, and find out how much money was spent in all the 7 assembly segments, number one. Secondly, you talked about my expansion in other states. Sir, please understand that you cannot compare Telangana with West Bengal. We have 17 Lok Sabha seats. Over there are 42. And even in West Bengal, we contested only in 6 seats. For your information, you must correct your information. Uttar Pradesh, we contested because we were part of an alliance of Babu Singh Kushwaha. Whereas Congress contested 402 and won 1, and BJP won 250. So that also is there. What was your first question? Right. Asadji, like what you were telling, when we talk about, let's not compare with other states. Let's talk about Telangana and Old City in particular. What about the Charminar circuit? What about the metro development that was planned, which hasn't happened? As I told you late. about, see, metro has come in Old City. What is that part which goes into Malakpet? It is Old City only. People don't realize this. It is the Old City. The only But Old City is not that alone. No. The only portion that has to be done is from the Jubilee bus stand via Darushafa, via Akana Madana temple to Falaknuma. That this government has ordered, this government has given some funds, and RDP has already been prepared.
and hopefully after elections the work will start. But to say that metro has not come into Old City is completely wrong and baseless. As far as Charminar pedestrianization work is going on, and we have held many festivals over there, in around Charminar. One or two bottlenecks are there because of court stay. One place the court stay has been vacated. Hopefully from Mitika Share to Lad Bazaar that road would be opened. अच्छा असदुद्दीन जी, आप ओल्ड स्टेट में आप जैसा आप कह रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं, यही तो सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी केवल ओल्ड स्टेट में ही काम क्यों करना चाहते हैं, पूरे तेलंगाना में क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, आप पूरे देश में, आप इसी इलेक्शन में देख लीजिए, जितने कैंडिडेट आपने राजस्थान में उतारे उतने आपने नहीं उतारे यहाँ पर, तो उसके पीछे केवल एक यही कारण है कि बीआरएस को सपोर्ट करना है? नहीं, देखिए एक बात समझिए, मैं जहाँ का एमपी हूँ मुझे तो काम करना पड़ेगा ना, मुझे कल जाकर रोड पूछना है। नहीं, वो आप करिए, सुन तो लीजिए, लेकिन सुन केवल ओल्ड हैदराबाद, सुन तो लीजिए, मैं जाके कल वोट पूछूंगा तो लोग बोलेंगे कि आप खाली भाषण देंगे, टीवी 9 पे बैठे तो वोट दे देंगे क्या आपको? मेरे बताना पड़ेगा मैं ये काम किया हूँ, ये काम कर रहा हूँ। जहाँ तक सवाल दूसरे स्टेट का है, आप चलकर बिहार में हमारा एक एमएलए है, आप चलकर देख लीजिए अख्तर अली मान किस तरह अपनी विधानसभा में काम थे तो ज्यादा, हाँ? थे तो ज्यादा। हाँ, वो कहानी बोलिए। हमारे 5 एमएलए बिहार में जीते सर। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव 4 एमएलए को हमारे खरीद लिए, एक को 70 लाख, एक को 80 लाख दिए और खरीद लिए। वही काम मोदी जी महाराष्ट्र में किए, मध्य प्रदेश में किए, कर्नाटका में किए, तो राहुल गांधी क्या बोले, कांग्रेस क्या बोली? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। फिर वहां पर जो आप बिहार में किए वो क्या सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी था? वो गांधीइज्म था? वो बताइए आप। और एक जोक सुनिए आप, बड़ा मजा आएगा आपको, लतीफा है। एक हमारा बिहार का एमएलए पैसे ले लिया, पैसे लेके दुबई में एक बिरयानी की शॉप खोले, किसको चीफ गेस्ट बना के लिख गए? आपके ये जुबलीज कैंडिडेट को। उनको बोले तो उन्होंने बोले नहीं, मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट होना मेरे को। तो फर्स्ट क्लास के टिकट में एमिरेट्स एयरलाइन से दुबई गए और ये जुबलीज का कांग्रेस कैंडिडेट बिरयानी की शॉप का इनॉग्रेशन कर रहे। बिहार का एमएलए हमारे से जीता, पैसे लिया तेजस्वी से और राहुल से। दुकान का क्या नाम लिखे मालूम? हैदराबाद बिरयानी। हम लोग हैदराबाद में बोलते देखो साहब क्या बोलते हैं, मामू की दुकान पे नाना की फातिया हो गई। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है क्योंकि समय बहुत कम बचा है, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर भारत, हेमंत बिस्वा शर्मा मेरे को हमास का सपोर्टर बता दिए। अरे भाई तुम्हारे मोदी नहीं, सुनिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को थोड़ा दिमाग में डालना, निकालना भूसा। मोदी जी स्टैंप रिलीज करे पैलेस्टाइन के लिए, मोदी जी बोल रहे कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के कायल हैं, पैलेस्टाइन कंट्री एग्जिस्टेंस में आना। अरे कुछ भी हुआ हमास में। अच्छा, ये आप बोलते तालिबानी मानसिकता, क्या मोदी जी नहीं बात कर रहे तालिबान से? पूछिए आप, तालिबान से बात हो रही है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट की, तालिबान से। वी आर इन टॉक्स विद देम, उनको बुला के ट्रेनिंग दे रहे हम लोग इंडिया में। अरे बीजेपी वाले हमको बेवकूफ समझते। भाई आपके कान में फूल होगा, मेरे कान में फूल नहीं है। Right, Asadji, one final question. Like you said, the ending also has to be great. So my question is, what's your reaction on Muralidhar Rao's sensational comments about Darussalam? Muralidhar Rao's sensational comments on Darussalam. What did he say? About government taking control over it once it comes to power in the नहीं, उनकी बाप की जागीर नहीं है, आके दारुसलाम ले सकेंगे? नहीं ले सकते। बाप की जागीर नहीं है उनकी, उन्होंने नहीं ले सकते। ऐसी बातें करते, खाली लंबी बात करते। अरे दारुसलाम लेना है ना, मैं मुरलीधर को चैलेंज कर रहा हूं, 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो चाइना कब्जा करके बैठा, तुम जाके लो। डेपसांग, डेमचौक, पोंगसोंगसू लेक, हम 2000 स्क्वायर किलोमीटर खो दिए, तुम दारुसलाम की बात कर रहे। तुम देश को बचाओ ना। चीन बैठा हुआ है वहां पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स, हम लैंड लूज कर दिए। आपको दारुसलाम की फिक्र है? डोंट वरी, दारुसलाम विल डिफीट बीजेपी एंड कांग्रेस इन तेलंगाना इलेक्शंस। Thank you so much. Thank you so much, Asad Thank bhai. you, Asad ji. Thanks a lot. Thanks for your time and thoughts. Thank you.